Yes, our environment was derived from environ. Environ means surroundings, covering. What are present in our surroundings, which are from which we are covered? That is our environment. So first of all, we are present inside a system that is known as ecosystem. Ecosystem, different types of ecosystem present in the nature. Some are small, some are large. Small ecosystem and large ecosystem. Some ecosystem is natural, some is man-made. Natural ecosystem just like pond ecosystem, sea ecosystem, grassland ecosystem. These are the natural ecosystem which is present inside the nature. And man-made ecosystem just like fish aquarium. That is man-made ecosystem. Pond ecosystem, man-made ecosystem. Grassland, after sometimes 1 year or 2 years, we remove that grass, all these things, that is man-made ecosystem. These are according to their origin, that man-made and natural. Ecosystem is also according to size. Small micro ecosystem and macro ecosystem, minor ecosystem and major ecosystem. Minor ecosystem छोटा सा होता है just like fish aquarium. और मेजर इकोसिस्टम क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, जस्ट लाइक सी इकोसिस्टम, दैट इज द मेजर इकोसिस्टम. Ecosystem has two factors, that is biotic factor, another one is abiotic factor. Biotic factors, that is living things or all living organisms including biotic factors, and non-living including abiotic factors. What are the non-living or abiotic factors? Just like water, air, hills, or soil, any other, humidity, moisture, sunlight, lava, that become a soil. So these are hills, mountains, flat. These are the different part of the ecosystem which is abiotic, non-living things. We not discuss about these things, that is abiotic ecosystem, abiotic factors. We discuss in this chapter, that is biotic factors. Mainly three types of biotic factors present in the nature or in ecosystem. That is producer. Second one is of consumer. And third one is of decomposer. Producer, consumer, and decomposer. Mainly these three types of biotic components present in the nature. First is of producer. What do you know about producer? Anyone? Yes? Yes, which produce energy, or we can say they convert light energy into food energy or any other types. That is producer. That produce especially food for all living beings. Producer that produce food for all living beings. That is producer, and it includes all green plants, especially green, not plants, green plants. Sometimes some plants there that not photosynthesize. Any examples? Which not photosynthesize? Any plant which not photosynthesize, that is parasite. Cascuta, it is in your first chapter. Amarberry, that is not photosynthesize, not produce food for the any other others. That is parasite. But producer all green plant included in this group. Second one is of consumers. Consumers, they depend upon the
producer, that is the consumers, that consume the food material which is produced by the producers, that is consumers. Consumers, that is primary consumers. Secondary, tertiary, first level of consumer, second level of consumer, third level of consumers. It includes green plant. We also differentiate in other way that consumers, that is herbivore, herbivore, carnivore, and you all well know what is herbivore, what is carnivore, and what is omnivore. Yes or no? Yes. Herbivore, which is depend upon green plants. Carnivore, which is depend upon other animals for the flesh. And omnivore, which is depend upon both green plant as well as any other animals, that is omnivores. So primary consumers is always herbivores, but not secondary consumers. Secondary consumers depend upon primary consumers and tertiary consumers depend upon secondary consumers. Carnivores, not always secondary consumers. For example, like human beings. Human beings sometimes work as a herbivore, sometimes as a secondary consumer, sometimes as a tertiary consumers or omnivores. How? जब आप डायरेक्ट फूड पे या प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं तो हेर्बीवोर है, परंतु जब किसी फिश को खा रहे हैं तो जरूरी नहीं आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्सरी भी हो सकते हैं, क्योंकि फिश ने किसी दूसरे इंसेक्ट को खाया, इंसेक्ट ने प्लांट को खाया, तो वो टर्सरी लेवल का कंज्यूमर भी हो सकता है. सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जिनको इकोसिस्टम में एक से ज्यादा जगह पे रख सकते हैं, दैट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स को बहुत सारी जगह पे रखा जा सकता है, लाइक दैट ओमनिवोर्स आल्सो. ओमनिवोर्स को भी किसी भी लेवल पे रखा जाता है. एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑफ decomposers. Decomposers that depend upon dead and decaying organic matter, that may be producer or consumers. Consumer भी हो सकते हैं वो और producer भी हो सकते हैं. That is decomposer. They decompose the all organic matter and mix into the soil, and that will be available to again into the nature. Decomposers के अंदर वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर नेचर में पड़ा है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं. दैट मींस द पार्ट ऑफ द सॉइल एंड इट विल बी अगेन अवेलेबल टू द प्लांट्स. प्लांट्स को वापस अवेलेबल हो जाएगा. सपोज कोई प्लांट्स है, प्लांट्स की डेड बॉडी है, प्लांट्स का ऑर्गेनिक मैटर वो मिक्स होगा, सॉइल का पार्ट हो गया, कार्बन कार्बन मिक्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, अगेन दैट प्लांट विल बी ऑब्जॉर्ब ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड air. So decomposer, that is bacteria, fungi, and some annelids. Annelids भी होते हैं, just like earthworm also work as a decomposer. So especially bacteria and fungi that work as a decomposer. बाकी सारे में अलग अलग animals हैं. Bacteria and fungi work as a decomposer. Now we study different phenomena of ecosystem. First of all, there is food chain. Food chain. What is food chain? Food chain, the sequence of organism in which one organism depend upon another. The sequence of organism in which one organism depend upon another for their food. The sequence of organism in which one organism depend upon another for their food and nutrition, that is food chain. Who eat whom? कौन किसको? The sequence of organism in which who eat
whom, कौन किसको खाएगा, that is the food chain. The sequence of organism in which who eat whom, that is the food chain. फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है, प्लांट्स, दैट इज ग्रासेस. सबसे पहले जो आएगी वो आएगी प्लांट्स या ग्रासेस. ग्रासेस पे कौन डिपेंड होगा, ग्रासहोपर और डियर, काउ. यस, ऑल herbivores depend upon the grasses. Just like insect, that is grasshopper, cow, deer, these are depend upon the grasses. And on cow, lion, insect, or right here grasshopper, frog, snake, and eagle, hawk, deer, lion, or jackal to lion. These are the food chain. मैंने जो फूड चेन बनाई है तीनों सिंगल फूड चेन बनाई, जिसमें एक के बाद एक ही. परंतु बहुत सारी फूड चेन ऐसी होती है in nature that just like frog only did not depend upon the grasshopper, lion only not depend upon the cow. उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव फूड भी होती है, फूड हैबिट भी होती है. तो ऐसी कंडीशन में यहां से कोई यहां ऑर्गेनिज्म है, सपोज ए, यहां कोई है बी, यहां कोई है सी, ये सी इधर भी आ सकता है, और दिस यहाँ कोई है डी, ये इधर जा सकता है, यहाँ ई, यहाँ एफ, ये इधर भी जा सकता है, और जी. तो दिस वन इज ग्रास ए टू डी, ग्रास सी ए ई जी, ग्रास ए एफ जी. These are the different food chains. Means the many alternative pathway of the food. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग केवल ग्रास पे डिपेंड करेगा, या फिर केवल अपन ग्रास ऊपर कहेंगे केवल ग्रास पे. वो अलग अलग तरह के वो तो हाँ, जो हर्बीवोर्स है या इंसेक्ट है जो वो केवल ग्रास पे डिपेंड करेगा, परंतु उसके ऊपर है. जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो मैंने यहाँ बताया था लोइन केवल काउ पे डिपेंड नहीं होगा, या लोइन केवल डीएल पे डिपेंड नहीं होगा, उसके ऊपर अल्टरनेटिव फूड रिसोर्सेज भी है जिनको वो खा सकता है. तो वेयर मेनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाती है और दे फॉर्म फूड वेब. बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाती है और अल्टरनेट पाथवे हो जाते हैं किसके, फूड के, और वो अल्टरनेट पाथवे के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर. फूड चेन में क्या हो रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दैट इज फूड चेन. मींस in food web many food chain interlinked together that form a network of organism that is known as food web. जिसमें ऑर्गेनिज्म का नेटवर्क बन जाता है उसको अपन फूड वेब कह सकते हैं. एक आता है ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो ट्रॉफिक का मतलब आएगा समझ में. फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन में अपन ने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक, हीटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, न्यूट्रिशन. ऑटो सेल्फ न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉपिक दैट डिपेंड अपॉन अनदर और मींस फॉर देयर न्यूट्रिशन. हियर अगेन ट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन. ट्रॉपिक लेवल मींस न्यूट्रिशनल लेवल. So these are the different trophic level present in the nature, that is T1 first trophic level, T2 second trophic level, T3 third trophic level, T4
fourth trophic level, and T5, and ultimately T6. Suppose we here placed that is grass. Grass is always on the first trophic level, and there receive the energy from the सन सन से रहती है वो फर्स्ट लेवल को उसने अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ अपन ग्रास ऊपर ले सकते हैं। grasshopper, that is on second trophic level. grasshopper second trophic, grasshopper के बाद frog जो होगा थर्ड trophic level, frog के बाद snake फोर्थ पे आएगा, फिर eagle, hawk जो है फिफ्थ trophic level पे आएगा। But whenever all these organisms will die, they will not be able to for sixth trophic level, that is decomposure. अब यहाँ पर frog है, sometimes frog directly depend upon the grass also, कभी भी, तो वो वहां पे T3 पे नहीं और किस पे आ जाएगा, just like human being किस पे डिपेंड है, तो हो सकता है वो T3 पे या T4 trophic level पे हो। Whenever human being directly depend upon the green plants, that on T2 trophic level. So trophic level is not fixed particular organism, which is according to the food chain. उस फूड चेन में वो किस चीज को ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल इज द न्यूट्रिशनल लेवल, वी कैन से न्यूट्रिशनल लेवल मींस ट्रॉफिक लेवल इज द लेवल फ्रॉम वेयर दैट ऑर्गेनिज्म रिसीव देयर न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहां से रिसीव कर रहा है उस लेवल को वो शो कर रहा है, एंड अल्टीमेटली ऑल द ऑर्गेनिज्म आफ्टर देयर डेथ दे आर एबल टू देयर सिक्स्थ लेवल ट्रॉफिक लेवल, दैट इज ऑफ डीकंपोजर्स। क्योंकि सबकी डेथ के बाद अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करेंगे वो डीकंपोजर होते हैं, उनके पास फूड पहुंच जाता है। सो ट्रॉफिक लेवल दैट इज द न्यूट्रिशनल लेवल दैट शो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम व्हिच लेवल, कौन से लेवल से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। एक और एस्पेक्ट होता है इसका इकोसिस्टम का, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उससे पहले एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो is occurred according to 10% flow. If we see in the food chain or in trophic level, the energy is transferred in the one form to another form. Normally, the grasses obtain food from sun, and grasses only utilize the 1% of sunlight, only 1%. जितनी सनलाइट आ रही है उसका 1% ही यूटिलाइज कर सकता है, उसको अपन कह सकते हैं T1। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे केवल 1% ही यूटिलाइज होगा। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे इसका 10%, दैट इज 0.1। इसके बाद T3 पे इसका 10%, दैट इज 0, that is 10%. Means whenever energy is transferred from one organism to another organism, only 10% energy is utilized, 90% energy released in the nature, that is 10%. और जैसे अपन ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो अपनी बॉडी में स्टोर हुआ वो 10% हुआ। जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया या कुछ जो फूड लिया वो फूड नेचर में जितना हुआ, जैसे गेहूं का प्लांट ग्रो किया, गेहूं के प्लांट में उसके रूट अलग हो गई, स्टेम अलग हो गया, केवल ग्रेन्स लिए अपन ने और ग्रेन्स का पोर्शन ही अपनी बॉडी में आया, तो दैट 10% इज स्टोर इन आवर बॉडी, रेस्ट 90% रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। सो दैट एनर्जी फ्लो
और ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी अकर अकॉर्डिंग टू टू thermodynamics laws. Thermodynamic के दो लॉ होते हैं. If you studied in physics or in chemistry, energy is not created nor destroyed. एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता. नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सेकंड वन इज ऑफ एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक टाइप से दूसरी टाइप. जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर इनटू लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ट्यूबलाइट. Electrical energy transferred into mechanical energy with the help of pen. So in this way, that energy is transferred from one form to another form, and it is not destroyed and not created. इन्हीं दो लॉ के थ्रू इसको जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो फर्स्ट ने जितनी ली है उसका 10% ही आता है. जैसे अपन बात करें, अपन ने जितना खाया होगा बर्थ से लेके आज तक, वो अपनी बॉडी में स्टोर हुआ, उसका 10% अपने में स्टोर हुआ. अगर अपन किसी का भोजन बनते हैं जस्ट लाइक लोइन, तो उसको क्या मिलेगा, अपन ने जितना खाया उसका 10% मिलेगा. वो 10% अपनी बॉडी में स्टोर है. सपोज यहाँ पर काउ और यहाँ तो ग्रास है और यहाँ लोइन. तो यहाँ ग्रास सपोज 100 केजी ग्रास खाई काउ ने, तो उसको 10 केजी ही मिलेगी. यानी 10 केजी स्टोर इन द बॉडी ऑफ काउ इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, और वही 10 केजी आगे जाएगी. बाकी उसने अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू, या जैसे मैं घूम रहा हूँ कर रहा हूँ तो एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी के फॉर्म में भी वो यूटिलाइज हो रहा है. तो energy flow in which in energy flow that energy is transferred from one level to another level, one trophic level to another level, and only 10% energy is transferred from one trophic level to another trophic level. 90% energy is destroyed. Destroy नहीं कह सकते. 90% energy goes in such form in which from which that organism cannot again रिटेन, उसको वापस से वो नहीं ले सकता. ऐसी फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में जा चुकी है, वो नेचर में जा चुकी है, तो डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते उसको. नेचर में जा चुकी है, उसको वो ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकता, या नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे वो अवेलेबल नहीं होती. सो दिस इज एनर्जी फ्लो. एंड वन मोर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजी के जो पैरामीटर्स होते हैं, जस्ट लाइक बायोमास, जस्ट लाइक नंबर्स और एनर्जी फ्लो. सबसे पहले बात करें नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर, दैट ऑलवेज अपराइट. कैसे? यहां पे बात करेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. इफ वी काउंट द number of grasses, their maximum number of pyramids, number of grasses is maximum. किसी भी फूड चेन के अंदर ग्रास की संख्या काउंट करें तो सबसे ज्यादा होगी. ग्रास पे डिपेंड कौन है? काउ की संख्या उससे कम होगी, और काउ पे डिपेंड कौन है? लॉइन की संख्या और कम. So these are always upright. Number of grasses is maximum, then cow, then loin. But we see in tree pyramids, tree ecosystem. अगर tree ecosystem में देखें तो ये उल्टा होता है.
नंबर का पिरामिड उल्टा हो जाएगा। कैसे? जैसे सिंगल ट्री, ट्री तो एक ही, उस ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स रह सकते हैं, जो कि उनका शेल्टर भी वही है और खाना पीना भी उसी प्लांट पे है। बहुत सारे बर्ड्स रह सकते हैं। बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट रह सकते हैं। पैरासाइट, सपोज एक बर्ड में 2 भी पैरासाइट है तो उनकी संख्या वापस ज्यादा है। तो ये कौन सा हो गया? इनवर्टेड पिरामिड्स। इसको क्या कहेंगे? इनवर्टेड पिरामिड्स। सेकंड पिरामिड होता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। बायोमास, अगर अपन इस जो ग्रास है, ग्रास का बायोमास काउंट करें, बायोमास दैट इज ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बायोमास दैट इज ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज बायोमास। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट जो होगा वो क्या होगा? बायोमास होगा। तो सारी ग्रासेज का बायोमास देखा जाए तो वो सबसे मैक्सिमम होगा। काऊ का बायोमास देखा जाए तो ग्रास से थोड़ा कम होगा, और लोइन का बायोमास देखा जाए तो थोड़ा कम होगा। परंतु यही बायोमास अगर अपन देखें पॉन्ड इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में दैट इज फाइटोप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? तैरने वाले छोटे छोटे पौधे। देन जूप्लैंक्टन, जू मींस जूप्लैंक्टन मींस एनिमल्स, जो तैरने वाले एनिमल्स होते हैं। एंड स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड यानी इनका वेट बहुत कम होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, जूप्लैंक्टन का वेट थोड़ा ज्यादा होता है, स्मॉल फिश का और ज्यादा होता है, लार्ज फिश का वेट और ज्यादा होता है। तो बायोमास पिरामिड इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। बायोमास की पिरामिड पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होते हैं। एंड लास्ट टाइप ऑफ पिरामिड्स इज ऑफ एनर्जी। कोई सा भी इकोसिस्टम हो, भले वो ग्रास इकोसिस्टम हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, सी इकोसिस्टम हो, the energy pyramid is always upright because the energy, only 10% energy is utilized by the next trophic level। तो हमेशा एनर्जी का इकोसिस्टम अपराइट होता है, उसमें कोई इन्वर्टेड या कोई अलग सेम साइज का नहीं होता। तो that move according to 10% लो, यानी एक को जितनी मिली है उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल पे अप्लाई होगा, उसका 10% नेक्स्ट लेवल पे होगा, उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल पे होगा। दैट इज एनर्जी पिरामिड्स। इसके बाद क्या टॉपिक आ रहा है बुक में? ओजोन लेयर। Ozone, it is made from 3 atoms of oxygen. 3 atoms of oxygen, and the concentration of this layer is high in outermost atmosphere of the earth. अर्थ एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर होती है उसमें इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV rays, ultraviolet rays. Ozone is protect us from the ultraviolet rays. But nowadays, ozone is deflected from CFC, that is chlorofluorocarbon into O2 plus O. We can say this is good for us? No, but it releases oxygen. But this oxygen is not available to us because it is present in outermost atmosphere. यहाँ बाहर है ये, जो अपने किसी काम की नहीं है। And where that oxygen, ozone is degraded by the chlorofluorocarbon.
and in ozone layer a black hole is found during the summer season. समर सीजन अंटार्कटिका के ऊपर ब्लैक होल बढ़ जाता है, विंटर सीजन में ये वापस रिप्लेनिश हो जाता है, फिर समर सीजन में बढ़ जाता है। परंतु जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, अगर बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में ये रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा और परमानेंटली ब्लैक होल बन जाएगा एंड दैट क्रिएट स्किन कैंसर, आई इरिटेशन एंड म्यूटेशन। स्किन कैंसर हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकता है और प्लांट्स में और एनिमल्स में म्यूटेशन हो सकता है। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन चेंज इन क्रोमोसोम, दैट कॉल्ड म्यूटेशन। अगर जैसे अपनी बॉडी में यूवी रेस अगर आएगी तो क्या होगी? क्रोमोसोमल सीक्वेंस, क्रोमोसोमल फॉर्मेशन या क्रोमोसोम की शेप साइज चेंज हो सकती है और क्रोमोसोम की शेप साइज चेंज होगी तो अल्टीमेटली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम ब्लास्ट हुए थे तो वहां अभी भी ऐसे लोग बनते हैं, पैदा होते हैं जिनमें कहीं कहीं जो हेरिडिटरी डिजीज है, वो हेरिडिटरी डिजीज क्यों है? ड्यू टू अल्फा रेज, बीटा रेज, gamma rays cause different types of mutation in their chromosomes। तो इसी तरह से ये यूवी रेज यहाँ तक आएगी तो अपने जीन्स में, अपने क्रोमोसोम में चेंजिंग ले आएगी, दैट मींस म्यूटेशन कर देगी। अभी अपन सुन रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, कुछ दिनों में अपने आप को चेंज कर लेता है। चेंज क्यों कर लेता है? ड्यू टू म्यूटेशन। सपोज आज किसी ने मेडिसिन बनाई, उसमें उसका जीन इस तरह का बना हुआ, ठीक है, इसने अपने आप को चेंज कर लिया और ये इस तरह का हो गया। अभी तो ये सर्कल में घूम रहा है परंतु ये इस तरह का हो गया। इसके ऊपर जो मेडिसिन वर्क करेगी इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी। ये और ये म्यूटेशन क्यों होता है? उस हेरिडिटी वाला चैप्टर का इवोल्यूशन हट गया, वैसे आप लोगों के वो नहीं हटता तो उसमें बताता म्यूटेशन से इवोल्यूशन भी होता है, यानी नए तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो ये पुराने तरह का वायरस था, ये नए तरह का वायरस, इसी में म्यूटेशन कंटिन्यू होगा और चेंजेस आ जाएंगे। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन से उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चेंज हो जाते हैं और वेरिएशन आती है, डिफरेंसेस आते हैं। तो ओजोन लेयर डिग्रेडेड हो रही है डे बाय डे, तो वी हैव टू यूटिलाइज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ CFC। CFC का कोई अल्टरनेटिव सोर्स निकालना चाहिए जिससे CFC का यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो और ओजोन लेयर बनी रहे और इसका डिफ्लेक्शन नहीं। एंड लास्ट वन इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। We produce different types of garbage. Some are biodegradable, some are non biodegradable. So we have to manage that garbage in different ways.